Good afternoon, students. We have been discussing investment. In previous class, we discussed the meaning of investment, and I told you that there are two types of investment. One is autonomous investment, and second one is induced investment. Autonomous investment, we discussed that it is expenditure on capital goods which is independent of the level of income. Means autonomous investment is done with no motive of profit. Means profit is not the main motive of autonomous investment. Of course, there is benefit of the autonomous investment, so there is no direct profit motive, and this is generally done by the government. So, and we also discussed that investment curve is parallel to x-axis. I discussed the curve of autonomous investment. Now today we will see induced investment. Induced investment means what? This investment is motivated by expected profitability and level of income in the economy. So just opposite of the autonomous investment was constant, it was fixed, but induced investment is done with profit motive. It is done by businessman, business person, and therefore it is motivated by expected profitability. If there is no profit, there will be no induced investment. And it depends on level of income also. So if income rises, investment also rises because there is inflow of income. So as we know that investment generates income. When we learn the multiplier, however, one video of multiplier I posted on YouTube channel, that how investment generates income which is equal to multiples of the investment. Means if 100 is invested, then many times more income will be generated, maybe 500, 600, 800. So that we'll discuss in case of multiplier. So investment and income both are interdependent. If income increases, investment will increase, and if investment increases, income will increase. So both are dependent on each other. It is positively related to the level of income. It is Y here. So it is positively related to the level of income. It is directly affected by change in the level of income. So it is positively related to the level of income. What does it mean? It means if income increases, investment increases, and if investment increases, income increases. This is the positive relation. If there will be negative relation, it means reverse will happen. So if investment increases, income decreases. If income increases, then investment decreases. But there is positive relation. Now see next. So what we concluded now is that autonomous investment does not have the profit motive, but induced investment is motivated by the expected profit. If there will be no profit, there will be no investment done by the business person. So as we can see from the diagram here, that investment is shown on y-axis and income on x-axis. We can see that with amount A of investment, M amount of income is generated. Means when OA amount of investment is done, then OM amount of income is generated.
When investment increases to OA1, income also increases to OM1. So both are increasing, and therefore in this case curve will be like this. So more and more income will be increases, more and more investment will be done. यदि इनकम बढ़ते जाएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होते जाएगा। यहाँ फिक्स नहीं है कि इनकम बढ़ रहा है फिर भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है, ऐसा नहीं होता है। आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखे थे कि इनकम बढ़ रहा था फिर भी इन्वेस्टमेंट फिक्स था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जिस तरह से इनकम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ते जाएगा। तो ये मेन आपको दो चीज़ याद रखना है कि एक जो है प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्ट किया जाता है और एक जो है आपको बिना प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। सो दिस इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। Determinants of investments means what are the factors which determine the investment, the factors on which investment is dependent. So there are two determinants of investment. One is marginal efficiency of investment, this marginal efficiency of investment, and second one is rate of interest, ROI. So marginal efficiency of investment, which is also known as marginal efficiency of capital, CAPITAL. So you can say marginal efficiency of investment or marginal efficiency of capital. तो पहला ये फैक्टर है जिस पे इन्वेस्टमेंट आपको डिपेंड करता है। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? इट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें कितना रिटर्न होगा, कितना प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, वो यदि पॉजिटिव होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, यदि पॉजिटिव नहीं होगा तो वो जो है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। So it is defined as expected rate of return of an additional unit of capital invested. जो कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, यदि उससे प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर उसको इन्वेस्ट क्यों किया जाएगा? तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो फ्यूचर प्रॉफिट है, जो बिजनेस पर्सन जो है एक्सपेक्ट करता है यदि हम इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमको इतना रिटर्न होगा, तो ऐसा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका एक फार्मूला है टू फाइंड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनटू 100। फिर से आप देखिए, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनटू 100। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है आपको क्या हो गया कि जितना आपको इनकम आएगा, जो इन्वेस्ट किए हैं आप, जो कैपिटल को आप लगाए हैं जिसमें आप, उससे कितना आपको रिटर्न आएगा, कितना आपको एक पार्टिकुलर ईयर में कितना उससे आपको जो है रिटर्न आएगा, एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और उसको उस मशीन को खरीदने के लिए, ठीक है, उस मशीन को यदि मान लीजिए कि आप एक मशीन 1000 रुपया में खरीदे हैं, तो 1000 रुपया में जो आप खरीदे हैं तो उस मशीन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा? 1000। मान लीजिए इस मशीन को आप रिप्लेस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, उसके जगह पे कोई दूसरा मशीन, वही मशीन खरीदिएगा तो कितना में आप खरीदेंगे? 1000 रुपया में। तो जो वो 1000 का मशीन जो है वो कितना इनकम दे रहा है और उसका जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा, इसका जो रेशियो निकालते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ये आपको टाइम डिपेंड करता है। मान लीजिए जो 1000 का मशीन जो आप खरीदे हैं तो उसका लाइफ टाइम कितना होगा? मान लीजिए 10 साल होगा, तो 10 साल में वो कितना आपको इनकम देगा, डिवाइड बाय आप 1000 का मशीन खरीदे हैं, वो 1000 लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए,
तो ये आपको पता था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो बैंक से हम लोन लिए हैं, कैपिटल जो हम लोग लोन लिया है उसको फिर खर्च इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उससे जो है आपको ये ज़्यादा होना चाहिए। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो इनकम है आपको प्रॉफिट, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम लोग पेड कर देंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग बैंक को, तो उससे ज़्यादा होगा तभी तो बचेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इससे हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए जो है ये टर्म आपको जानना जरूरी था। सेकेंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फिनांसिंग द इन्वेस्टमेंट। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आप बोरो करते हैं, कहीं से लाते हैं, या तो बैंक से लाते हैं या दूसरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उससे आप लेते हैं। तो जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जितना आप लोन लिए उससे आपको ज़्यादा जो है पैसा आपको देना पड़ता है, पेड करना पड़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यदि ज़्यादा आपको पेड करना पड़ेगा बैंक को, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो बैंक रेट है उसको कम कर दिया है ताकि ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट हो, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, मनी बढ़ जाएगा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, और उस तरह से इकोनॉमी जो है आपको ऊपर जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम रहेगा, याद रखना इस चीज़ को, तो इन्वेस्टमेंट आपको क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इन्वेस्टमेंट दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. So when rate of interest was R1, the investment was M1. So COR1 is the rate of interest and OM1 is the investment. Now when rate of interest rises, that is R के पास आ गया, पहले OR था और जैसे ही OR1 हो गया तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट आपको OM1 से OM हो गया, घट गया। पहले तो आपको OM1 था, उसके बाद अब क्या हो गया, OM हो गया, ठीक है। उसी तरह से सपोज दैट कि पहले जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट OR था, ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना था, OM था। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नीचे गया, OR1 हुआ, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, OM1 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इससे हम लोग यही देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्टमेंट कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, दोनों के बीच में जो है आपको इन्वर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है यहाँ पे। नाउ सी नेक्स्ट, सो मीनिंग ऑफ एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये दो टर्म्स भी जो है आपको समझना जरूरी है। एक्स एंड सेविंग्स का मतलब क्या होता है, व्हाट सेवर्स और हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, दीज आर इंटेंडेड और प्लान्ड सेविंग्स। यानी कि जो आपको सोचा है, ठीक है, जो प्लान किया है, या तो कोई सेवर्स या हाउस होल्ड जो प्लान किया है, आपको यहाँ पे एक्चुअल सेविंग नहीं हो रहा है, सेविंग होने से पहले जो प्लान किया हुआ यानी कि प्लान इंटेंडेड सेविंग जो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंड सेविंग्स। उसी तरह से एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स किसको बोलेंगे, व्हाट इन्वेस्टर्स और फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, दीज आर इंटेंडेड और प्लान इन्वेस्टमेंट। और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जो प्लान किया जाता है, जो कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करेगा, ऐसा प्लानिंग किया है लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। उसी तरह से आपको एक्स पोस्ट सेविंग्स होता है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।